Good morning class. So today we are going to study chapter number 40, Indian puppetry. Puppetry is an old tradition art in India and in many parts of the world. Puppets are of 4 types. So first we should know about the puppetry. What is puppetry? The doll dance is called puppetry, in which an artist moves the heads, legs and the body gesture with the help of some string tied on the hands, on the heads of the dolls, and in the background music also played in the certain languages. So that is called the Indian puppetry. Why it is called Indian puppetry? Because in India, not only in the Rajasthan, there are many states where the Indian puppetry is performed, and people appreciate this doll dance, and people go to see the performances performed organized in different places of the states. Okay, so you know that this is our culture, and this also comes in the tradition of India. So it is the part of Indian tradition and culture. So first we should know about puppetry. Puppetry is an old tradition art in India and in many parts of the world. Puppets are of 4 types. First one, that is string puppets. Number 2, shadow puppets, rod puppets and glove puppets. So first I would like to tell you about string puppets. What is string puppets? String puppets are those puppets, those the doll are made and their hands and legs, their mouth, their body is also tied with a string. That is called a string puppet. Next, the shadow puppet. Shadow puppets में क्या होता है? एक पर्दा लगा होता है और उसके पीछे लोग अलग अलग तरीके की ड्रेस पहनकर परफॉर्म करते हैं, और वो जो भी परफॉर्मेंसेस होती हैं तो शैडो बेस्ड होती हैं. थर्ड वन, दैट इज रॉड पपेट्स. रॉड पपेट्स क्या होते हैं? रॉड पपेट्स में मतलब डिजाइन्स को बनाया जाता है. रॉड पपेट्स में डिजाइन को रॉड से बनाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका ग्लव पपेट्स. ग्लव पपेट्स में क्या होता है? ग्लव्स पहनकर किसी तरीके की डिजाइन्स बनाई जाती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं ग्लव पपेट्स. ओके, सो यूज द क्लूज ऑफ पिक्चर्स एंड प्लेस टू नेम द puppetry फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. यस, सिट डाउन. ओके, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फ्रॉम राजस्थान. So different type of puppetries are there given in the pictures. You can see, and the names are also given in their local languages. So you have to tell me the answer. Who is going to tell me the answer? Only one child will raise his hand. Who is going to tell me the answer? Vivek. Okay, who is going to tell me the answers of these questions? Ankit? Ankit Kumar Swen, are you there? Okay, so you have to tell me the answers of these questions, okay, by seeing at the back of the book. Okay, ma'am. Okay, so the first one, that is from Bihar. In this one you can see that the ट्रेडिशनल स्टोरीज आर प्ले. क्या किया जाता है? एक ट्रेडिशनल स्टोरी को पकड़ा जाता है और उसको प्ले किया जाता है. बिहार में लोग क्या करते हैं, जैसे राम सीता की स्टोरी, भगवान श्री राम की वो स्टोरी सुनाते हैं. ऐसे ही और भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो राजाओं महाराजाओं की और क्या
कहते हैं योद्धाओं की कहानियां होती है उन्हें प्ले किया जाता है। तो पीछे से बिहार की जो लोकल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज से वो गाना बजाया जाता है, कुछ लोग उसे गाते रहते हैं और लोगों को, जो वहाँ के लोग होते हैं लोकल की भाषा वो समझ जाते हैं, तो उसी में वो गाना होता रहता है। गाने में कहानी चलती रहती है। जैसे आप लोग की इंग्लिश में बैलेड होती हैं, बैलेड्स में क्या होती है, एक कहानी होती है पूरी। उसी तरीके से जो सॉन्ग्स होते हैं वो चाहे वो भोजपुरी लैंग्वेज में हो, चाहे वो संथाली लैंग्वेज में हो, जो भी लैंग्वेज होती है उसमें वो पीछे से गाना बैकग्राउंड में बजता रहता है, जिससे ये पता चलता है कि कहानी में हो क्या रहा है। और उसी कहानी के अकॉर्डिंग जो वो होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो इसको बनाते हैं या उसको परफॉर्मेंस करवाते हैं, वो लोग इन्हें हैंडल करके इस तरीके से उसे एक्ट करवाते हैं कि वो लगे कि वो कहानी के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बिहार वाली है इसका क्या नाम है अंकित? मैम यमपुरी। इट्स नेम इज यमपुरी। द फर्स्ट आंसर इज यमपुरी, इसको बोलते हैं हम लोग यमपुरी। ओके, नेक्स्ट वन इज वेस्ट बंगाल। You can see from the West Bengal, the doll is made of, I think, हाँ, ये जो वेस्ट बंगाल वाली है बच्चों, इसमें ज्यादातर किसकी कहानियां होती हैं? देवी माँ की कहानियां होती हैं। किसकी कहानी होती है? देवी माँ की। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा किसकी पूजा की जाती है? देवी और देवियों की पूजा की जाती है। आप लोगों को पता होगा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में होती है। तो वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है, उस दुर्गा पूजा की वजह से वहां पर लोग माता जी के चित्रण पर बहुत सारी कहानियां बनाते हैं और उन्हीं से संबंधित डॉल से बनाते हैं और उन्हीं से परफॉर्मेंस भी कराते हैं। तो ये जो डॉल आप देख रहे होंगे इसमें माता जी का चेहरा दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ये वेस्ट बंगाल में करी जाती है। इसका नाम क्या है? मैम पुतला नाच। वेरी गुड, पुतला नाच नहीं, पुतुल नाच लिखा है। तो पुतुल नाच इसका नाम। पुतुल का मतलब होता है पुतला और वो नाच का मतलब डांस, तो पुतुल नाच हो गया। ओके, नेक्स्ट वन फ्रॉम राजस्थान। अब राजस्थान में देखो, राजस्थान वाले में क्या होता है, राजा और रानियों की कहानियां होती हैं, जिसमें देखो उनकी आईज बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती है और उन्हें बड़ी बड़ी मूंछों वाला बनाया जाता है। उनके गुड्डे कैसे होते हैं? बड़ी बड़ी मूंछों वाले होते हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी मूंछों वाले होते हैं। और जो वहाँ जो लड़कियों की जो पिक्चर बनाई जाती है वो पुतले में क्या बना होता है? ढेर सारे गहने पहने होते हैं। इसी तरीके से वहां पर मिलते हैं लोग, वहां पर जाते हैं तो लोग खरीदते भी हैं इसको, डॉल्स को। ठीक है, तो फ्रॉम राजस्थान वाली पपेट्री का क्या नाम है? कठपुतली। कठपुतली डांस। क्या बोलते हैं इसको? कठपुतली डांस। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रॉम ओडिशा। देखो ओडिशा में आप देख रहे हो ये एक तरीके से शैडो पपेट्री है। इसमें देखो यहाँ पर भगवान राम का कोई कर रहा है परफॉर्मेंस और यहाँ पर ये रावण 10 सिरों वाला रावण है। तो इस तरीके से जो शैडो वाली पपेट्री होती है वो कहाँ होती है? ओडिशा में होती है। और इसका नाम क्या है? रावण छाया। रावण छाया, इसको क्या बोलते हैं? रावण छाया। नेक्स्ट हम आंध्र प्रदेश में जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में पिक्चर्स बनाई जाती हैं, उसमें लोग खुद परफॉर्म करते हैं और वो क्या पहने होते हैं? वो उस तरीके की डिजाइन्स वाले कपड़े पहने होते हैं, उसमें आदमी लोग खुद परफॉर्मेंस करने जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो पपेट्स होते हैं उनको भी किसी तरीके से स्ट्रिंग से ही काम कराया जाता है। और उसकी खास बात क्या होती है कि उनका फेस जो होता है वो डबल साइडेड नहीं होता, सिंगल साइडेड फेस होता है। कैसा होता है? सिंगल साइडेड फेस, मतलब वो हमेशा इस साइड में देखते हैं, या तो वो इस साइड में होते हैं या तो वो इस साइड में होते हैं, उनका सामने वाला फेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये होती है फ्रॉम आंध्र प्रदेश। इसका नाम क्या है? गोमबियट्टा। क्या बोलते हैं इसको? गोमबियट्टा। हाँ, ओके, नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रॉम कर्नाटका पपेट्री। कर्नाटका पपेट्री में क्या है? ये जो इसमें होता है, इसमें मुकुट पहने होते हैं और इन्होंने धोती कुर्ता पहना के डिजाइन बना रखी है। और ये भी स्ट्रिंग पपेट्री है बच्चों, ये भी स्ट्रिंग पपेट्री है। लेकिन इसमें आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें जो लोगों ने मुकुट पहन रखे हैं, ये मुकुट आपके जो भरतनाट्यम डांस करते हैं उनके मुकुट से काफी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का कहाँ से पड़ेगा? कर्नाटक
चलेगा, ठीक है। इसमें कन्नड़ लैंग्वेज में गाना प्ले करते हैं पीछे से और पूरी कहानी बताई जाती है। सो इट्स नेम इज गोम्बेट्टा। गोम्बेट्टा। अभी तो थोड़ा भी देर पहले बताया गोम्बेट्टा और फिर उसके बाद फिर वही बता रहे हो, ये कैसे हो सकता है? मैम आंसर शीट में वही लिखा है। अच्छा, दोनों में सेम है? देख रही हूँ यहाँ इसमें लिखा है बी, ये एफ है लग रहा है। नहीं, इसका नाम तो ये लग रहा है मुझे, थोलू। क्या नाम है? एक मिनट। किसका नाम? ये फ्रॉम कर्नाटका, इसका नाम है आई थिंक थोलू बोम्मालट्टा। हाँ, थोलू बोम्मालट्टा नाम है इसका आई थिंक, ये थोलू बोम्मालट्टा। हाँ, और क्या? मैम हाँ, मैम गोम्बेट्टा नाम है। गोम्बेट्टा नाम है, तो फिर फिफ्थ वाली का क्या नाम था? आंध्र प्रदेश वाली का क्या नाम था? दो पूरी लाइन क्या? अच्छा, कोई। चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी आप लोग मुझे को आंसर ढूंढ के बताना, ठीक है। नेक्स्ट 7th आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वाले में क्या होता है बच्चों, इसमें भी शैडो वाली होती है, लेकिन इसमें पिक्चर्स कलर्ड होती हैं। जैसे इसमें केवल शैडो होती है ना, इसमें पिक्चर्स होती हैं और पिक्चर्स के पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आता है केवल। और पिक्चर्स ऐसे ही छोटी छोटी प्लेट्स बनाई जाती हैं, डिजाइन्स बनाई जाती हैं और उनको बताया जाता है, वो भी पर्दे पर क्या होता है, फोकस किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग जी, लिखा है क्या ये? कलासूत्री बाहुल्य। हाँ, कलासूत्री बाहुल्य, कलासूत्री। अच्छा, कलासूत्री। किसी को महाराष्ट्रियन आती होगी तो उसका अर्थ पता चलता होगा। ओके, अच्छा महाराष्ट्र से हो तो इसका क्या मतलब है? कलासूत्री का क्या मतलब है बेटा? मैम नहीं मालूम, मैम देखा ही नहीं है। नहीं देखा है? महाराष्ट्र में नहीं देखा है, ये तो ट्रेडिशनल होता है वहाँ का। चलो कोई नहीं देखा है तो क्या कर सकते हैं, आजकल ये सारी ट्रेडिशनल चीजें गायब भी तो हो रही हैं, कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रॉम केरला। सो केरला के लोग कैसे करते हैं, उनकी जो डिजाइन्स होती है, उनके जो पपेट्स होते हैं वो भी किस कैटेगरी के होते हैं, वो भी कथकली के जैसे डिजाइन होते हैं, ठीक है। वो ज्यादातर पौराणिक कहानियों के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो जो भी पौराणिक कहानियां होती हैं वो बैकग्राउंड में प्ले होती हैं और लोग उसे सुनते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? पावाकुथु। पावाकुथु बोलते हैं। जिसको केरलाइट्स की लैंग्वेज आती होगी केवल वही जानते होंगे इसकी क्या मीनिंग होती है। आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट। So the chapter is completed. Now we are going to study about world famous paintings. So the paintings are given. You have to find out. No, you don't have to find out. It's just for your own knowledge. So first one is given the School of Athens. ये जो बुक, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो स्कूल ऑफ एथेंस की, ठीक है। ये स्कूल ऑफ एथेंस की जो पिक्चर है, इसमें इस पेंटिंग का नाम ही क्या है? स्कूल ऑफ एथेंस। और इसका आधा पार्ट इसमें लिखा हुआ है ना, लुक एट द पेंटिंग्स, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 halves and spread over both the pages. Identify the match both the halves using the given clues. तो अब देखो, इसका आपको आधा पार्ट ढूंढना है। सो स्कूल ऑफ एथेंस का आधा पार्ट हम ढूंढेंगे और हमें उसके पेंटर का भी पिक्चर में का नाम भी मिलेगा। सो यू कैन फाइंड आउट वेयर इट इज गिवन यू दिस वन। हाँ, तो ये है आपका रफेल, ये रफेल है, इन्होंने ही इस पिक्चर को बनाया था। सो द हाफ पार्ट इज हियर एंड द फर्स्ट पार्ट इज हियर। लेट मी राइट ऑन इट। सो ये है आपका फर्स्ट और इसका आधा पार्ट है आपका ये।
फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज द लास्ट सफर। लास्ट सफर क्या है, मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया है कि लास्ट सफर एक ऐसी पेंटिंग थी जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। उन्होंने ये बताया था कि भगवान यीशु जो क्रिश्चियनिटी के जो मसीहा थे कह सकते हो आप लोग, तो भगवान यीशु जो थे उन्होंने जो लास्ट भोजन किया था, उस पिक्चर के पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है। उस पिक्चर में आप जब जैसे इसमें तो हाफ पार्ट यहाँ है आपका और हाफ पार्ट आपका यहाँ दिया हुआ है, तो जब इस दोनों पिक्चर्स को आप मिलाओगे तो आप देखोगे ध्यान से कि इसमें सारे लोग गोरे हैं, सिर्फ एक आदमी को क्या बनाया गया है, ब्लैक बनाया गया है। और उस ब्लैक आदमी को क्या माना गया है कि वो सारे लोगों में से कोई भी अपने भोजन पर हाथ नहीं रखा हुआ है, केवल एक आदमी है जिसने अपने भोजन पर हाथ रखा हुआ है। वो आई थिंक यहीं पर है, इसी पिक्चर में यहीं कहीं आसपास है। इसकी बड़ी पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसमें आप लोग समझ पाओगे। क्लास अभी देखो, इस पिक्चर को देखो ध्यान से। इस पिक्चर में हर आदमी जो है, जितने भी लोग हैं, सब क्या है, किसी ने भी खाने पर हाथ नहीं रखा हुआ है एक आदमी को छोड़कर। वो आदमी कौन सा है, ये वाला आदमी, ये जो भगवान के जस्ट बगल में है। एक मिनट, ये वाला आदमी आप देख रहे हो, इसने खाने पर हाथ रखा हुआ है, बाकी किसी ने भी खाने पर हाथ नहीं रखा हुआ है। नहीं सॉरी, ये वाला व्यक्ति है, ये वाला, सॉरी, हाँ ये वाला व्यक्ति है जिसने खाने पर हाथ रखा हुआ है। इसका आप लेफ्ट हैंड देखोगे तो खाने के ऊपर रखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि सारे लोग जो है वो भगवान के खाने का वेट कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो था, इसका नाम मुझे नहीं पता क्या था, कुछ नाम था इसका बच्चों, मुझे याद नहीं ढंग से। लेकिन ये व्यक्ति जो था, इस पूरे के पीछे कहानी ये है कि भगवान यीशु जब लास्ट दिन जब उनको क्रूस पर चढ़ाने वाले थे, उससे पहले उनको उन्हीं के लोगों ने धोखा दिया, और उनमें से जो आदमी धोखा दिया था वो ये आदमी था। आप देखो सारे लोग जो है उसमें गोरे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का है। तो ये जो व्यक्ति है डार्क कॉम्प्लेक्शन का, ये बताया गया है कि इसने यीशु भगवान को धोखा दिया। तो यही पूरी कहानी, मतलब इस पर एक कहानी पूरी बेस्ड है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही फेमस पेंटिंग है, और बच्चों ये इटली की कैथेड्रल चर्च में लगाई गई है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट का वो है ना, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, okay, let me complete the next one. So third we are going to study about third one is La Muse. इसका क्या नाम है, ला म्यूज है। अब इसका हमें हाफ पार्ट ढूंढना है। इसका हाफ पार्ट देखो आप लोग कहाँ मिलेगा, इसमें तो पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं पता। वेयर इज द हाफ पार्ट, देखो जल्दी ढूंढ के बताओ। ये क्या, जे है ना, ये पैब्लो पिकासो, हाँ है ना। तो ये है आपका पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि ये भी बहुत बहुत महान पेंटर थे। पता नहीं क्या बनाते थे, मुझे भी नहीं पता था, बस बनाते थे इतना जानो, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट, मैम दूसरी भी वही है, फोर्थ वन, वेयर इज फोर्थ वन, मैम वही ये द बैटल ऑफ अलेक्जेंडर। ये देख सकते हो आप लोग, ये बैटल ऑफ अलेक्जेंडर नाम की ये है बनाई हुई, और इसका हाफ पार्ट हम ढूंढेंगे इस पिक्चर में। पी, लेट मी सी वेयर इज बी। अच्छा ये है, ये दिख गया। अरे भाई एक बोलो तुम लोग, सब हमें कंफ्यूज कर दे रहे हो। डी है ना, रुको एक सेकंड ढूंढ रहे हैं। ये है देखो, मिल गया हाफ पार्ट इसका, ये है क्या लिखा है, अल्ब्रेट एडोल्फर नाम है, सॉरी। सो द अल्ब्रेट अल्फोर्डर ने बैटल ऑफ अलेक्जेंडर नाम की पिक्चर को बनाया था। नेक्स्ट द फिफ्थ वन इज द स्टेरी नाइट। स्टेरी नाइट का सेकंड पार्ट आपका यहाँ है, ऊपर में।
ये ऊपर आप लोग देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ, विंसेंट वैन गॉग। विंसेंट वैन गॉग, ये आपकी देख रहे हो, ये है स्टेरी नाइट का 5वां पार्ट, ठीक है, हाफ पार्ट मिल गया। नेक्स्ट 6th वन इज द फ्लूट कंसर्ट। सो द फ्लूट कंसर्ट का आधा पार्ट कहीं दिख रहा है, घोड़े घोड़े दिख रहे हैं, एल एडोल्फ मेंजल, ये वाला एडोल्फ मेंजल, हाँ, ये हो गया तुम्हारा 6th का 6 वाला पार्ट। ओके, 7th इज द लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट जानते हो ना किसे कहा गया है? लास्ट जजमेंट का मतलब है जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो ईसाई, मतलब ये जो क्रिश्चियनिटी फिलॉसफी है, उनका ये मानना है कि जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो लोगों का क्या होगा, जजमेंट होगा। जिसने जो पाप किए होंगे तो वो नर्क में जाएगा, और जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, तो ये इसका आप जस्ट नीचे देख सकते हो, माइकल एंजेलो ने इस पिक्चर को बनाया है। सो दिस इज द 7th वन। ओके, नाउ द 8th वन इज, वेयर इज द 8th वन? पहले तो ये ढूंढना पड़ता है क्वेश्चन ही कहाँ है। वेयर इज क्वेश्चन? ये होगा इधर। ओके, वेयर इज 8th वन? देखो 8th वन वाला कट गया इसमें, आप लोगों को मुझे खुद नहीं पता चल पा रहा। अच्छा सॉरी, द फायर है, द फायर है। द फायर का आधा पार्ट आपको कहाँ मिलेगा? आधा पार्ट ऊपर है मैम, ऊपर है। Class silent. Don't make the certain noises. I can see, I can listen also. So where is the half part? Begin it out, Ma'am, C. Ma'am, at the top line C1. in the top line C1. Where is C1? I am not able to see C1. हाँ, मिल गया, ये हाफ पार्ट, इसकी आधी खोपड़ी मिल गई इसकी हाफ हिस्सा मिल गया भाई इसका। 8th वन का ये है 8th वन, ठीक। इसका कलर बदल दूं क्या? ये इसका तो कलर ही बदल रहा है, अलग ही होता है। इसमें से कौन सा कलर चुनूं? ये अच्छा होता है, ये रेड कलर है, ये अच्छा लगता है, चलो ठीक। नेक्स्ट है आपका 8 पे थे हम, 9th पे जाएंगे अब। 9th वाला कहाँ है? Where is the 9th one is the marriage of the virgin। मुझे इसका मतलब सच में नहीं पता है कि ये किसने बनाई है। अब हम इसका हाफ पार्ट ढूंढेंगे। इसका हाफ पार्ट ऊपर दिख गया मुझे, ये राफेल ने बनाई है, आई थिंक बी है ये, है ना? द मैरिज ऑफ वर्जिन, ये है। दिस इज द 9th वन। ओके, द 10th वन इज मोनालिसा। मोनालिसा की हाफ पार्ट लियोनार्डो दा विंची दिख रही है, ये है आपका 9th वन। दिस इज द 9th वन। एंड द 10th वन इज, वेयर इज द 10th वन? The 10th verse is only Mona Lisa। 10th वन ही मोनालिसा थी। 11th ढूंढना है हमें। यह है आपका इलेक्ट्रिक प्रिज्म, यह है आपका इलेक्ट्रिक प्रिज्म। इसका हाफ पार्ट हम ढूंढेंगे, हाँ उसके जस्ट नीचे सोनिया डेलनी, सोनिया डेलनी है, यह है आपका 11th इसका नेक्स्ट पार्ट। और 12th में हम जाएंगे 12th। Where is 12th? 12th का दिख रहा है, देखा? हाँ, the battle of Agriri, the battle of Agriri, ये है आपका for 12th। इसका हाफ पार्ट आपको लियोनार्डो दा विंची में दिखेगा। ओके, then 13th one is the women of Algiers, the women of Algiers। This is the 13th one
half part is A. We can see it is like Eugene Delacroix. Its name is Eugene Delacroix. Okay. Then 14th one, mountain and sea. The mountain and sea. This is the 14th one, and its half part is. इसका half part. मैम इतने अजीब अजीब ड्राइंग से ऊपर से ब्लिंक कर रहा है। मैम इतने ये है क्या? हाँ यही है. So the half part is here. Helen Frankenthaler. Helen Frankenthaler. So he is the 14th one, and by this way it has been completed. So we have found all the halves of the painters and their painting. So class, let me tell you one thing. In exam, if the question will come, the question will be based on, जैसे आपको क्या दिया रहेगा, पूरी पिक्चर दी रहेगी, आपको बस पेंटर का नाम बताना पड़ेगा. ठीक है, पिक्चर दी रहेगी, आपको पेंटर का नाम बताना पड़ेगा, और इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम का पेपर थोड़ा बड़ा होगा ना. ठीक है. Next we are going to talk about Indian research stations in Antarctica. अब देखो, Antarctica, where is Antarctica? Let me tell you that on Earth there are 2 poles. The first one, that is North Pole and South Pole. So where is Antarctica? Antarctica all is on South Pole. Okay? South Pole. Yes, it is in South Pole. So Antarctica में जो South Pole है, वहाँ पर कोई भी रह नहीं सकता. Nobody can sustain that atmospheric condition because it has the lowest temperature of the world. सबसे कम टेम्परेचर वहां पर रहता है. इस वजह से लोग अंटार्कटिका में नहीं रहते, और जो लोग रहते भी हैं तो वो एक स्पेशल तैयारी के साथ रहते हैं, जैसे कि उनके पास स्पेशल टाइप के कपड़े होते हैं ठंड से बचाने के लिए. ऑक्सीजन की कमी होने पर वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं. तो इसलिए दुनिया के अलग अलग कंट्रीज ने वहां पर अपने रिसर्च स्टेशन स्थापित किए हैं, एस्टैब्लिश किए हैं. क्यों? ताकि रिसर्चेस जो है वो अकेले में की जा सके. दैट इज ऑल्सो अ डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट. और आप लोगों को पता होगा कि जो भी टेस्ट करे जाते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो परमाणु का टेस्ट हो या किसी भी चीज़ का टेस्ट होता है, बम का टेस्ट हो या कोई भी चीज़ का टेस्ट होता है, तो न्यूक्लियर टेस्ट और एटम टेस्ट के लिए ज़्यादातर लोग हमेशा डेजर्ट ही ढूंढते हैं. ठीक है, ताकि वहाँ पर किसी भी इंसान को, जान माल को नुकसान ना हो. इसीलिए अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में एस्टैब्लिश किए हैं. तो इसी तरह इंडिया ने भी अपना रिसर्च स्टेशन वहाँ खोला है. So now we are going to study about that research station that is established in Antarctica by Indian government. So under the Environmental Protocol of Antarctic Treaty 1959, India has set up 3 research stations in Antarctica up till now. Okay, so first one is, its name is Dakshin Gangotri. Its name is Dakshin Gangotri. The first Indian scientific research base station was established in Antarctica as part of 3 Antarctic program. It was established in 1983 to 84. It is located at a distance of 2,500 kilometers from the South Pole. South Pole से 2,500 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थापित है. इसको स्थापित किया गया है और इसका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ये रिसर्च बेस स्टेशन है जिसको अंटार्कटिक में 3rd अंटार्कटिक प्रोग्राम के रूप में स्थापित किया गया था. ओके, नेक्स्ट. देन इन द ईयर 1988 एन आइस फ्री रॉकी एरिया ऑन द स्कार्मर्कस, इसको पढ़ते हैं Skarmakhar Oasis was selected to build the 2nd research station named Maitri. Its name is
So the building was erected on steel stilt and has stood the test of time, conducting experiments in geology, geography and medicine. Let me tell you a little about this station. इस स्टेशन की क्या खास बात है कि ये पिलर्स पर बनाया गया है, पूरी बिल्डिंग पिलर्स पर खड़ी है और इसके बगल में ही ओसिस भी अवेलेबल है। ओसिस क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं। डेजर्ट में जो ओसिस होता है उसमें होता है पानी। डेजर्ट ज़्यादातर क्या होता है, उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर पानी नहीं होता है। जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर पानी सूख गया होता है और जहाँ कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहाँ पानी जम गया होता है। तो दोनों ही स्थितियों में पानी का हम लिक्विड वे में यूज नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से वहाँ पर पेड़ पैदा नहीं हो पाते। तो नॉर्मल क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, ओसिस है, मतलब बगल में क्या है, ओसिस है। यहाँ पर पानी, ओसिस का मतलब वहाँ पर आपको पानी जो है वो जमा हुआ मिलेगा, लेकिन आप उसे गला कर यूज कर सकते हो। एटलीस्ट पानी की अवेलेबिलिटी तो है, इट मीन्स वाटर अवेलेबिलिटी होने की वजह से उसे वहाँ पर स्थापित किया गया है। और कैसे स्थापित किया गया है, पिलर्स के ऊपर स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। और ये सेकेंड रिसर्च स्टेशन था, इसका नाम था मैत्री और ये स्टील पर पूरी तरीके से बेस्ड है। और इसमें क्या स्टडी होती है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, किस पर बेस्ड, जियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लोकेटेड बिसाइड द लासमान हिल अबाउट 3000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मैत्री एंड भारती was, its name is Bharti. So the first one name was Dakshin Ganga, second name was Maitri and third one that was established in 2015. अभी जब मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी जी खुद गए थे इसका इनॉग्रेशन करने, आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो 2015 में मोदी जी खुद गए थे इसका इनॉग्रेशन करने। इसका नाम था भारती एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015. So it is located between Thala Falls and Quilty Bay, east of Stones Peninsula in Antarctica. This station is special as it has been constructed using 134 recycled shipping containers to help research workers in safety despite the harsh weather. इसका जो पूरा बॉडी है ये एक तरीके से कैसे बनाई गई है, ये भी स्टील के ऊपर बनाई गई है और इसका जो मटेरियल इसमें यूज किया गया है उसके लिए सरकार ने ज्यादा पैसे नहीं लगाए हैं, बहुत ही किफायती दाम में बनाया है। कैसे, जो भी इसमें इस स्टेशन में जो भी शिपिंग कंटेनर्स होते हैं, ये पूरे जो है ये शिपिंग कंटेनर्स होते हैं। शिपिंग कंटेनर्स क्या होते हैं, जो आप लोगों की जो शिप होती है उसमें ऊपर कंटेनर्स होते हैं। जब एक सामान को दूसरी जगह इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए जो कंटेनर्स यूज करे जाते हैं उन कंटेनर्स से इसको बनाया गया है। इसके लिए अलग से कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, बल्कि शिप में जो कंटेनर्स होते हैं उन्हीं कंटेनर्स को वहां जाकर एस्टैब्लिश कर दिया गया और उनको ये जो पहले ही ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया गया और स्ट्रक्चर के ऊपर ले जाकर इसे क्या कर दिया गया, पुट अप कर दिया गया। तो इस तरीके से ये स्टेशन बनाया गया है और बहुत ही कम पैसे में बनाया गया है और रिसाइकिल्ड है। सबसे बड़ी बात, रिसाइकिल्ड मतलब दोबारा से उन्हीं शिप कंटेनर का यूज किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी रिसर्चर जो वर्क करते हैं वो बहुत ही सेफ्टी के साथ वर्क करते हैं, ठीक है। मैम रेड एंड ब्लू कंटेनर्स ना, मैम रेड एंड ब्लू कंटेनर्स, रेड एंड ब्लू कंटेनर्स। ओके, नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो सैटेलाइट लॉन्चेस इन इंडिया, यू नो दैट व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है, जिसको लॉन्च करते हैं रिसर्चेस के लिए। जैसे हमारी इंडिया, हमारे जो पृथ्वी है उसका खुद का एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या है, मून। उसी तरीके से हम भी मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजते हैं ताकि वहां से क्या किया जाए, रिसर्च करी जा सके और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सके एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। मैम 2019 में भी वो सेंड किया गया था, वो लॉन्च नहीं हो पाया था। Satellites are an important asset for any country. Today satellites are aiding in major areas of our lives like communication and weather forecast. So India has a number of rocket launch sites
द लॉन्च साइट क्या होता है मैं बता दूं आप लोग को, रॉकेट जहां से लॉन्च किया जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं, रॉकेट लॉन्च साइट्स बोलते हैं। अब उन्हीं साइट्स के बारे में हम पढ़ने जाएंगे। सो द रॉकेट कैरी द सैटेलाइट इनटू स्पेस, रॉकेट्स क्या करते हैं, सैटेलाइट को कैरी करते हैं स्पेस में ले जाकर और उसकी एक फिक्स एक सर्टेन प्लेस पर उसको ले जाकर छोड़ देते हैं जहां से वो खुद अपनी यात्रा अपनी ट्रैवलिंग चालू करता है। ठीक है, सो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया, फर्स्ट वन इज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये सबसे पुराना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके पीएसएलवी और जीएसएलवी रॉकेट्स लॉन्च होते हैं वो सब इसी से लॉन्च होते हैं। ठीक है, इसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वन इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम, केरला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना है और आज से नहीं, इसमें कई सालों से काम हो रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका बालासोर, ओडिशा। ओके, नेक्स्ट वन इज थोम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, तिरुवनंतपुरम, केरला। फोर्थ वन इज व्हीलर आइलैंड, नाउ नेम्ड अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा, मिसाइल टेस्टिंग। ये देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। पहले व्हीलर आइलैंड जो था उसका नाम था व्हीलर आइलैंड। ठीक है, ये व्हीलर नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो व्हीलर आइलैंड इसका नाम था, लेकिन बाद में अभी पिछले ही साल इसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया। जब अब्दुल कलाम का जो बर्थडे था ना, डेथ एनिवर्सरी थी, तो उस पर उस दिन व्हीलर आइलैंड को अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से चेंज कर दिया गया। ठीक है, और ये स्पेशली किसके लिए है, मिसाइल टेस्टिंग के लिए। अब मिसाइल टेस्टिंग कौन करता है, डीआरडीओ करती है। कौन करता है बच्चों, डीआरडीओ करती है। जो लोग मिसाइल्स बनाते हैं, आर्मामेंट्स प्रिपेयर करते हैं हमारी कंट्री के लिए, वो डीआरडीओ एक संस्था है। वही डीआरडीओ संस्था जब भी अपने मिसाइल्स बनाती है तो वो यहाँ पर से लॉन्च करती है। ओके, नेक्स्ट। मैम इसका नाम अब्दुल कलाम इसलिए तो नहीं रखा क्योंकि मैम मिसाइल मैन करने आया था अब्दुल कलाम। हाँ, इसी। So ISRO built India's first satellite Aryabhatta, which was launched by the erstwhile Soviet Union on 19 April 1975। तो इंडिया ने आर्यभट्ट नाम की पहली सैटेलाइट बनाई थी, किसके साथ सोवियत यूनियन के साथ मिलकर, मतलब वहां के साइंटिस्ट के साथ मिलकर इसरो ने अपनी खुद की आर्यभट्टा सैटेलाइट बनाई जो लॉन्च हुई थी 19 अप्रैल 1975। इसके बाद 1980 में रोहिणी became the first satellite to be placed in the orbit by an Indian made launch vehicle SLV-3। तो इंडिया का पहला लॉन्च व्हीकल बनाया गया SLV-3 और इसने पहला सैटेलाइट था जो रोहिणी नाम का, जिसे उसकी जगह पर फिक्स किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। ये अर्स्टवाइल बार बार क्यों लिखा है तुमको पता है ना? अर्स्टवाइल का मतलब एक जमाने में रूस क्या हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था। ठीक है, तो जो सोवियत यूनियन कहा जाता था उस वक्त के रशिया ने हमारी मदद करी थी। ठीक है, और तब सोवियत यूनियन जो था वो टूटा नहीं था। उसके बाद जब वो उसके 15 देश अलग हो गए, उसके बाद सोवियत यूनियन रशिया बन गया। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ओके, so successfully launched Sputnik 1 on October 4, 1951. It was the world's first artificial satellite. तो अब ये सोवियत यूनियन के बारे में बताया जा रहा है कि जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसका नाम क्या था, स्पुतनिक, जो किसने किया था, सोवियत यूनियन ने किया था। अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम का आविष्कार करा। उसके बाद उसको नीचा दिखाने के लिए सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 निकाल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं आईटी क्विज की ओर। क्लास वाइड पीरियड इज ऑलरेडी ओवर, सो चैप्टर नंबर 45 इज होमवर्क फॉर योर होम। So you can see the answer is already given in this page. You can take the photograph of this screen. Kindly take the screenshot of this chapter. I will send you the PDF also. So this is the homework of chapter number 45. You have to fill it out by yourself and the answers are given. Okay. So thank you everyone.
Thank